Hello dear students, welcome back to Power System class again. I hope all of you are doing well and good. In previous class, we discussed the classification of distribution system and we discussed distribution system in detail. We also saw the construction of underground cables, how they are constructed and how many layers are there. So today we are going to continue about our discussion regarding distribution system. We are going to discuss the requirements of an ideal distribution system, and then we will be discussing about the designing part of feeders and distributors. Okay, so without further ado, let's get started. Okay, so one more little small thing before we dive into requirements of an ideal distribution system. Okay, I would like to make it clear who are the consumers and who are the distributors. Okay, so who supplies the electricity and who consumes it. So कोई भी हो सकता है कि जो सप्लायर जो होता है, it can be government or it can be any private company, it can be any commercial company. Okay, it can be anything. Okay, and जैसे अभी आप देखोगे कि specifically I'm talking about distribution. Okay, we are not talking about generation and we are not talking about transmission. Specifically I'm talking about distribution system here. So डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन हो सकता है, तो इट कैन बी गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे कि आप में से कई लोगों के घरों पे इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम गुजरात जीईबी से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी. ठीक है, इफ़ यू आर फ्रॉम एनी बिग मेजर सिटीज़ जैसे कि अहमदाबाद हो गया, तो यहाँ पे अहमदाबाद में टॉरेंट पावर से इलेक्ट्रिसिटी आती है. सो दोस आर कॉल्ड, व्हाट डू यू कॉल इट देम, डिस्ट्रीब्यूटर्स. और वो लोग कौन से एंड पे होते हैं, supplier end पे, because they are supplying electricity and who are consuming it. So every one of us, you, me, our college, industries, hospitals, banks, it can be anything, it can be any religious places, वहाँ पे भी electricity you need. Then it can be anywhere, industries, organizations, companies, offices. Okay, commercial offices, you can talk about malls, theaters. All of us are what we are, consumers of electricity. Okay, so now that is clear, let's discuss about the requirement of an ideal distribution system. तो आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कुछ नॉर्म्स है, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी स्टेट की हुई है एंड दे दोज पॉलिसीज एंड नॉर्म्स आर required to be followed in order to achieve the best distribution possible. Okay, सो उसमें से सबसे पहला जो है पॉइंट, दैट इज वाटर ड्रॉप शुड बी विद इन द लिमिट. ओके, लेट्स पॉइंट इट डाउन. voltage drop within the limit. राइट, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक छोटा सा स्टैंडर्ड रूल है कि उसमें स्टेट किया गया है कि जो वोल्टेज वेरिएशन होता है, ठीक है, वोल्टेज वेरिएशन की बात करने से पहले लेट मी मेक इट क्लियर. हम लोगों के घर में, मतलब इंडिया में, इन इंडिया फॉर सिंगल फेज वी आर यूजिंग 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज सप्लाई. ओके, 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज सप्लाई. ओके, थ्री फेज़ का अलग है, थ्री फेज़ में 440 हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, बट सिंगल फेज़ वी आर यूजिंग 230 वोल्ट्स. सो रूल क्या स्टेट करता है, रूल स्टेट करता है कि वोल्टेज वेरिएशन शैल नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ +or -5%. ओके, +or -5%. माई हम्बल अपॉलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस डियर स्टूडेंट्स. ओके, सो वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए, +or -5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, सो वोल्टेज वेरिएशन शैल नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ +or -5%. सो जो हमारा 230 आता है उसका जब आप +or -5 करोगे
सो वो क्या लिमिट स्टेट करता है, इट स्टेट्स द लिमिट अराउंड 280 218 वोल्ट्स टू 241 वोल्ट्स। ओके, और आइडियल वैल्यू क्या हो गई 230 वोल्ट्स। ओके, अब what will happen if the variation of voltage crosses this limit? ओके, तो जो सबसे मतलब इम्पैक्ट तो सभी पे आएगा, बट सबसे मेजर इम्पैक्ट किसी पे आएगा, तो दैट वुड बी मोटर्स, राइट। व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ say it over voltage or under voltage circumstances? What will happen, the motor be it doesn't matter, be it induction motor or whatever motor you are using, okay, whatever motor you are using, induction or BLDC or whatever motors, there will be some change in the speed of my motor because of this change, this much change in voltage. Okay, and because of that change in the speed, there is a chance that your winding of your motor may get burned. Okay, based on over voltage or under voltage circumstances, the speed of my motor can go upwards or downwards, and based on that the winding can get burned because voltage will change, then current will change, and current will change, then because of overcurrent there is chances that your winding may get burned. Okay, ये बात हो गई motors की. Except that if you have seen, if you are, especially if you are living in rural areas, okay, you may have seen कि कभी कभी क्या होता है, जो लाइट जो है वो डिम हो जाती है, राइट, या फिर अचानक से ब्राइट हो जाती है. सो व्हाट इज दैट, दैट इज एक्चुअली रिजल्ट ऑफ योर वेरिएशन इन द वोल्टेज, जो सिटी एरियाज में बहुत कम होता है, बट रूरल एरियाज में यू माइट हैव सीन दैट. ओके, सो वो नहीं होना चाहिए. उसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लिकर ऑफ द लैम्प. ओके, और लैम्प फ्लिकर. सो दैट शुड नॉट बी हैपन. एंड इन केस ऑफ दैट सिनारियो है, जब लैम्प इस तरह से फ्लिक होने लगता है, राइट, मतलब अचानक से ब्राइट या डिम होने लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो लैम्प का फिलामेंट होता है, देर आर चांसेस कि लैम्प का फिलामेंट जो है वो भी बर्न हो जाएगा. ठीक है, सो दैट वाज आर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन. दूसरा जो है, इट इज़ वेरी सिंपल, रिलायबिलिटी. लेट्स राइट इट डाउन. रिलायबिलिटी. ओके, तो सबसे पहले तो you all might know कि what will happen if voltage we receive will not be reliable, right. कि अगर जैसे हो गया कि कॉलेज में से मैं लेक्चर ले रहा हूँ, आप लोगों के सबके ऑनलाइन लेक्चर हो रहे हैं, एंड in the middle of the lecture what will happen when electricity will gets cut off, because of cut off in electricity, Wi-Fi जो है वो बंद हो जाएगा, and because of that our connection will get disturbed. Same thing you can apply in another important places, like college lecture is important thing. Same way if you go into the industries, if there is some work going on, right, whatever operation you may say, any operation that involves electricity, it gets if it gets disturbed, like you may have seen कि यहाँ पे if let's talk about a plant which assembles vehicles, right, जैसे टाटा मोटर्स का प्लांट हो गया, साड़न में है, ठीक है. तो व्हाट विल हैपन इफ वहाँ पे पावर कट हो गया, जो भी सारे उन लोगों के इक्विपमेंट्स हैं दैट विल स्टॉप वर्किंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट वर्क गेट्स डिलेड, राइट. सो काम रुक जाएगा. सो इट शुड बी रिलायबल, and these were only places we were talking when electricity is important. Now what if we talk about the places where electricity plays vital role, very major role?
जैसे कि आप हॉस्पिटल्स की बात कर लो, ठीक है, अगर हॉस्पिटल में कुछ ऑपरेशन चल रहा है एंड इन द मिडल ऑफ द ऑपरेशन the electricity gets cut off, what will happen? And in that case there will be this in a situation of life or death for a patient, right? So it is very important that electricity that is being supplied shall be reliable, right? और साथ साथ में मतलब अब कोई भी जगह पे देख लो, आप आपके घरों में देख लो, इंडस्ट्रीज में देख लो, बैंक्स में देख लो, व्हाट विल हैपन इफ बैंक में इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन ना हो, लाइन और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, राइट? बिकॉज कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो रही है दैट शुड बी रिलायबल, और अगर वो रिलायबल नहीं होती है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए। लाइक कभी कभी क्या होता है कि कॉलेज में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, वी यूज जनरेटर्स, ओके, सो यू मस्ट हैव सम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर दैट, ओके। और जितना ज़्यादा हो सके, मतलब अभी तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इस तरह से चल रही है कि 24 आवर्स सप्लाई की रिक्वायरमेंट हमेशा ही होती है। सो इस तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो रिलायबल होनी चाहिए, और अगर वो रिलायबल नहीं होती तो कुछ अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, जनरेटर, सेट, एनी अदर थिंग्स, ओके। if you are not having that, then what should you have, like something like if you have no interconnected power systems, कि अगर आपकी पावर सिस्टम जहाँ से आपको पावर मिल रहा है, जहाँ से आपके लिए पावर फेड हो रहा है, वो सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट हो गया, सो देयर मे बी अनदर नेबरिंग सिस्टम विच कैन लैंड यू द पावर, ओके। So that will make your system more reliable. We will discuss about interconnected power system in upcoming lectures, okay. So at that time you will be able to understand it better. So that was our reliability, okay. Then there is availability as per demand. The third one is availability as per demand, okay. So discussing about that, सिंपली आस्किंग कि जो भी इंडस्ट्री होगी या फिर डोमेस्टिक एप्लीकेशन हो गया, सभी का डिमांड जो रहता है वो अलग हो गया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो, डिमांड जो होता है सभी का अलग अलग होता है। जैसे यू विल नॉट बी यूजिंग 3-phase सप्लाई एट योर होम, राइट? एंड if you talk about some industry, they will need 3-phase supply, okay. Like colleges, they will need, industries, they will need 3-phase supply. So based on the demand of consumer, जो हमारा सप्लायर है shall adjust and send power according to the demand, okay, and it should be available as per the demand. जहाँ पे 3-phase सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे 3-phase सप्लाई आना चाहिए, जहाँ पे सिंगल फेज का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सिंगल फेज आना चाहिए। एक्सेप्ट फॉर दैट देयर आर सम रूल्स कि जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन है उसके लिए इतना ही पावर होता है, उससे ज़्यादा पावर नहीं कंज्यूम होना चाहिए। उससे ज़्यादा पावर अगर कंज्यूम होता है तो फिर उसको हम लोग किस कैटेगरी में डाल देते हैं? उसको हम लोग डालते हैं कमर्शियल कैटेगरी में, ओके। सो इंडस्ट्रीज़ हो गई, या फिर ऑफिसेस हो गई, बैंक्स हो गए, या फिर आप बात कर लो मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स, ओके। ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं कमर्शियल लोड में, ओके। दे आर नॉट डोमेस्टिक लोड्स। और आप घरों में जो यूज़ कर रहे हो दैट इज़ डोमेस्टिक लोड। सो उन लोगों के लिए दोनों ही अलग अलग तरीके के लोड के लिए नॉर्म्स जो है गवर्नमेंट के अलग है, एंड दे शुड मस्ट बी followed, they must be fulfilled, okay. Then fourth and last point is availability. No, sorry, we discussed about availability just now. Stability, okay. There we go.
Stability. So what is stability? It connects with reliability as well, what we just discussed about interconnected power system, right? Now imagine a scenario that you are at some point at some location. Okay, let's discuss. You are at college. Okay, and there is a line going 5 or 7 kilometers from your college, and there is an occurrence of fault over there, and because of that fault all the electricity gets disconnected, even at your college as well. Okay, so that is not so much favorable thing. Okay, that is not so much favorable condition कि अगर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर अगर कोई फॉल्ट हुआ है और उसका जो इफेक्ट है वो इतनी दूर तक, लाइक 10 किलोमीटर्स तक अगर वो इफेक्ट जा रहा है, सो दैट इज़ नॉट फेवरेबल सिचुएशन. ओके, so we need to tackle that situation, and in order to tackle that situation, what do? We use interconnected power system. Okay, so you will understand it better when we will discuss about interconnected power systems. Let me give you a short intro about that. What will happen? There will be 2 to 3 different systems who are distributing the power. Okay, and when one system will lose power, or there is more demand of power at one end, the other system will be able to share its power with the first system. Okay, अगर ज़्यादा डिमांड होती है तो भी, और अगर इन केस ऑफ फॉल्ट, ओके फॉल्ट हो गया, so in that case also the other system will able to lend some power to the first system, and by this cooperation of systems we will be able to keep our power more stable. So that is the stability, and this system is called interconnected power system. Okay, so that was the requirement of an ideal distribution system. Now we are about to discuss uh, we are about to discuss the designing part of my feeders and distributors. Okay, so let's first write it down. Factors for designing feeders. Here we go. Factors for feeders. Okay. सो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है उसके अंदर हम लोग जो कंडक्टर्स यूज़ करते हैं वी यूज़ फीडर्स, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में व्हाट वी यूज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स. ओके, नाउ यू माइट रिमेंबर कि फीडर्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं. फीडर्स जो होते हैं दैट ओनली गोज फ्रॉम माई रिसीविंग सबस्टेशन टिल द मेजर सबस्टेशन एट इंडस्ट्री और द मेन सबस्टेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी. ओके, और जो फीडर्स होते हैं वो होते हैं, कितने होते हैं, दे आर 3 phase 3 वायर. डिस्ट्रीब्यूटर्स आर 3 phase 4 वायर्स. ओके, बिकॉज फीडर्स में जो है बीच में कोई भी टैपिंग नहीं होती. यू अंडरस्टैंड टैपिंग? लाइक टैपिंग इज व्हेन यू tap out the supply, when you drain out some voltage. Okay, let me give you a small, like, wait a minute, you will understand it better when I will show the image. So this was our system, and ये जो हो रहा है यहाँ पे, जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बिग कंज्यूमर्स लिखा है और 3 phase से यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्ट ड्रेन किया जा रहा है. ओके, सो यहाँ पे सप्लाई लिया जा रहा है, देखो 230 वोल्ट से. दिस इज कॉल्ड टैपिंग. ओके, और ये जो है ये फीडर्स हैं हमारे. ठीक है, ये फीडर है. सो फीडर में लुक, देयर इज नो टैपिंग इन बिटवीन. ओके, देयर इज नो टैपिंग इन बिटवीन. डिस्ट्रीब्यूटर में टैपिंग ली जा रही है, एंड डोंट मिस्टेक इट दैट दिस फीडर इज कंटिन्यूइंग. ओके, बिकॉज यहाँ पे यू आर टेकिंग you are having some load over here. यहाँ पे feeders end over here, right? So now getting back to our main point,
फीडर्स में डिज़ाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, करंट कैरिंग कैपेसिटी को इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा दिया जाता है. ओके, वाई? बिकॉज इट इज़ हैविंग 11 kV, दे आर बेसिकली 11 kV और हायर वोल्टेज लाइन्स. ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर 440 वोल्ट्स. सो उनको और उनका जो रोल होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन रोल होता है. सो टैपिंग ज़्यादा होती है, और जब टैपिंग ज़्यादा होती है तो हम लोग उसको डिज़ाइन करते टाइम किस चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम देते हैं वोल्टेज ड्रॉप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. ठीक है, राइट. जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो वोल्टेज वेरिएशन जो है ±5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस रूल को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. ठीक है. नाउ जो फर्स्ट फैक्टर है that is current carrying capacity itself. So let's write it down. ओके, सो फीडर में है हम लोग किसको ज़्यादा देते हैं, करंट कैरिंग कैपेसिटी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है. ओके, फीडर क्या करता है, पावर कैरी करता है कहाँ से कहाँ तक, अगेन रिसीविंग सबस्टेशन से लेके जो मेन सबस्टेशन होता है वहाँ पे, और बीच में कोई टैपिंग नहीं होता. ओके, अब जब कोई टैपिंग नहीं होता तो क्या होगा, जो करंट जो है थ्रू आउट माई होल फीडर, थ्रू आउट माई होल कंडक्टर, इट विल बी सेम. ओके, और जो वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो कौन से रीज़न से होगा, तो वो होगा जो आप जो रजिस्टर, लाइन का रजिस्टर होगा उससे, और जो लाइन रिएक्टेंस होगा उससे. सो देयर विल बी वोल्टेज ड्रॉप ओनली बिकॉज ऑफ दैट, and that voltage drop will be very less. Okay, because you are not having we are not draining any voltage. Okay, so that will be very less and we don't have to worry about it because we can compensate it. कैसे करेंगे, सो जो सबस्टेशन होगा, राइट, कौन सी साइड वाला, रिसीविंग एंड साइड वाला. ओके, तो वो जो सबस्टेशन होगा वहाँ पे व्हाट डू वी डू, हम वोल्टेज कंपेंसेशन के लिए वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइसेस वहाँ पे हम लोग लगा रखते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोगों को क्या हो जाता है, वी कैन compensate that voltage, so we don't have to worry much about voltages. Okay, but on the other hand जब हम लोग फीडर को डिज़ाइन करते हैं तो करंट कैरिंग कैपेसिटी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते हैं. क्यों देते हैं, क्योंकि जो करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वही डिसाइड करती है कि मेरा जो फीडर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, मेरे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा. ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट क्या होता है, करंट के क्रॉस सेक्शन, मेरे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के बेस के ऊपर हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि जो मेरा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो भी आप पोल बनाओ या जो कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या कितना ज़्यादा हैवी होगा, वेट उसका कितना ज़्यादा या कम होना चाहिए, बेस्ड ऑन द size of the conductor, cross section area of the conductor. Okay, so that was our first point, current carrying capacity. दूसरा जो है that is type of conductor, type of conductor, sorry, type of conductor. Okay, so दो अलग अलग, मतलब अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में अलग अलग तरीके से कंडक्टर्स को हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, अर्बन एरियाज़ में हम लोग क्या कर देते हैं, सो अर्बन एरियाज़ में देयर आर टाइप ऑफ कंडक्टर्स नोन एट ACSR. ओके, दैट स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम क्रॉस सेक्शन स्टील रेनफोर्समेंट. उसमें क्या होता है, जो मेरा कंडक्टर का कोर जो होता है, लाइक if you have remember from last to last lecture we have discussed about the requirement of underground cables, and in that we have discussed about the stranded conductor, about stranded conductor. Okay, so स्टैंडर्ड कंडक्टर जो हम लोग यूज़ करते हैं और उसमें ACSR हम लोग यूज़ करते हैं. ACSR में क्या होता है, जो मेरा सेंट्रल पार्ट जो होता है, वेट अ मिनट, लेट मी पुट ऑन द पिक्चर, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर व्हेन आई विल पुट ऑन द पिक्चर. यस, द ACSR कंडक्टर. ओके, तो ये जो सेंट्रल पार्ट आपको दिख रहा है, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू. सो ये जो सेंट्रल पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम. ओके,
और उसके अराउंड जो दूसरे जो पार्ट है दैट इज मेड ऑफ स्टील, उसको जो सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, जो पार्ट उसको सराउंड कर रहे हैं, दीज पार्ट्स आर यूजिंग स्टील, ऑलराइट. सो अर्बन एरियाज में दैट इज ओनली वी आर यूजिंग, ओके. बट सबर्बन एरिया हो गया, मतलब या फिर तो जो रूरल एरियाज हो गए, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम सिंपली गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर्स को यूज़ कर लेते हैं, ओके. पावर फीडिंग के लिए गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर्स को यूज़ कर लेते हैं. वाई? बिकॉज जो जो लेंथ होती है मेरे कंडक्टर्स की वो ज़्यादा छोटी होती है, ठीक है. बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया जाता, इतना ज़्यादा मतलब हम लोग पावर को स्ट्रेच नहीं करते वहाँ पे. बहुत हमारा जो लेंथ जो रहता है मेरे केबल का वो कम होता है, बिकॉज वी डोंट हैव टू सप्लाई टिल लॉन्ग रूट्स, राइट. बट इन अर्बन एरिया यू इट इज़ वेरी क्राउडी, यू हैव टू सप्लाई इट on the long routes. So that was my type of the conductor. Now coming back to our main topic, here we go. So second was our type of conductor. Third is distance. Okay, we just discussed about distance. So how and why the distance matters, okay. तो जो मैंने अभी आपको बताया, फीडर जो होती है उसका लाइन डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू हमारा डिस्ट्रीब्यूटर. वाई? बिकॉज फीडर इज सप्लाइंग फ्रॉम वन सबस्टेशन टू अनदर सबस्टेशन, एंड सबस्टेशन आर नॉट वेरी मच क्लोजर इन डिस्टेंस, ओके. Because you have to construct the whole substation, and if you have to construct the whole substation, the cost will be too much. So two substations are never too close to each other, okay. So substation are far from each other, और feeder जो क्या करता है एक substation से दूसरी substation तक ले जाता है. So distance हमेशा उसमें ज़्यादा रहेगा compared to distributor, okay. And जितना ज़्यादा distance रहेगा उतना ही ज़्यादा voltage drop होगा, ठीक है. सो जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप, एंड अकॉर्डिंग टू वोल्टेज ड्रॉप हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा. अब फीडर में हम लोग कहाँ पे कंपनसेट कर रहे थे, हम लोग सबस्टेशन पे कर रहे थे, ठीक है. कैसे? वोल्टेज रेगुलेशन इक्विपमेंट्स यूज़ करके. कहाँ पे? सबस्टेशन में. सो इस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप में डिस्टेंस जो है वो मैटर करता है. और फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉस्ट, राइट. हाउ कॉस्ट अफेक्ट्स, तो हमने पहले डिस्कस किया था कि ओवरग्राउंडर ओवरग्राउंड नहीं, ओवरहेड और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस होती है. सेम वेज वी आर यूजिंग ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, एंड वी डिस्कस की अंडरग्राउंड लाइंस जो होती है दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ओके. तो जो क्राउडेड एरियाज है, ठीक है, बड़े अर्बन सिटीज़ हो गई, वहाँ पे हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन यूज़ नहीं, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर more chances for somebody to get shocked, okay. So we do not often prefer that and we avoid it. So वहाँ पे we have to use underground cables, and using underground cables is way too much expensive than using overhead transmission, okay. So that is how the cost affects us. Same with rural areas में क्या होता है, it is easy to use overhead cables because वहाँ पे you get more space and you get less crowdy thing, okay. So the cost is less for overhead lines and we use that in rural areas, okay. Now let's discuss a small point which discusses about the comparison between feeders and distributors, real quick because lecture has been stretched a little bit too longer today. So here's the difference or comparison between feeder and distributor. Feeder I've told you previously,
कि उसका सप्लाई जो होता है क्या होता है, 3 फेज 3 वायर होता है RYB। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर 3 फेज 4 वायर और उसमें न्यूट्रल भी होता है। फीडर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई टेंशन लाइन बोलते हैं। वाई? बिकॉज वोल्टेज जो है वो ज़्यादा कैरी करता है। डिस्ट्रीब्यूटर लो टेंशन लाइन्स बिकॉज इट कैरीज लो वोल्टेज। कितना कैरी करता है? फीडर कैरी करता है 33, 22, 11 केवीज। डिस्ट्रीब्यूटर 3 फेज में करता है 440, सिंगल फेज में 230। ओके, फीडर में कोई भी लोड कभी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, वो सबस्टेशन से सबस्टेशन जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हमेशा हम लोग टैपिंग करके लोड को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। सो लिंकेज की मैंने अभी बात कर ली, सबस्टेशन से सबस्टेशन जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ जाता है? छोटे सा सबस्टेशन से वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन हो गया, इंडस्ट्री हो गया, तो वहाँ पे। ओके, सो लिंक बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर टू द कंज्यूमर कनेक्शन। ओके, देन डिज़ाइन की बात करें तो हम जब फीडर को डिज़ाइन करते हैं तब हम लोग सबसे ज़्यादा किसको कंसिडर करते हैं? करंट कैरिंग कैपेसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्ट्रीब्यूटर्स के टाइम पे हम लोग किसको कंसिडर करते हैं? वोल्टेज ड्रॉप को। ओके, देन टैपिंग। तो फीडर में कोई टैपिंग नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूटर में हमेशा टैपिंग्स होती हैं बिकॉज उसका पर्पज़ ही वही है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, फीडर में हम लोग क्या करते हैं? हाई कैपेसिटी कंडक्टर यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में हम लोग नहीं करते हैं हाई कैपेसिटी कंडक्टर यूज़। वाई? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर इज हैविंग लो वोल्टेजेस। ओके, देन फीडर कहाँ से लेता है पावर? फीडर इज फॉर्म्स प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, कौन से सिस्टम में आता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट है फीडर। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट है। ओके, और वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन के बारे में हमने क्या बताया? वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन जो है वो हम लोग क्या करते हैं? सबस्टेशन पे वोल्टेज रेगुलेशन इक्विपमेंट्स यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को कंट्रोल कर सकते हैं फीडर्स में। ओके, और डिस्ट्रीब्यूटर्स में हम लोगों को वोल्टेज ड्रॉप अगर कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी डिस्ट्रीब्यूटर की जो लाइन है, जो लाइन की जो लेंथ है, उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बाय डूइंग दैट वी कंट्रोल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके, so we will be keeping this lecture till here. In the next lecture we most probably will finish this chapter. We will be seeing a few numericals and we will be discussing about the uh, interconnected systems, radial systems and ring main system in detail. So thank you everyone for listening. I'll be seeing you in the next lecture. Goodbye.